equals to 7. 2x plus 3y is 7 and twice ax plus a plus b times y will be 28. Now this is a system of equation. Has infinitely many solutions. Many solutions. The question is also depending on state line. State line, if it is asked in state line, then the question will be in different way, but the equation will be same. Has infinitely many solutions. Then the values of a and b are respectively. Option A 2, 5. Option B 5, 8. Option C 4, 8. And the last one is 3, 6. The option में 8 है तो दोनों को चेक करो. So for what value of A and B, the equation has infinitely many solutions. Very simple trick, similar to the straight line. Straight line में क्या था? पहला equation था, पहला trick था A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. देखिए, let me see. Okay. 4-8 आंसर आया है दो स्टूडेंट का. 4-8 आंसर दिया दो स्टूडेंट ने. इसमें होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस. और जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का एक कंडीशन, मतलब इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन. देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ये जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन की ओर. ओनली वन सॉल्यूशन. The two equation has only one solution. The two line are intersecting. This is the condition. A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. Now next condition. We have the another condition. The condition is for parallel lines. Our पहला intersecting line means one solution. ये infinitely many solution था. A parallel line. देखिए इस तरह के दो parallel line है. These are two parallel lines, or we can say these are the two parallel lines. Now the condition for parallel line was, yes, ये 4 है, B 8 है, आंसर बराबर है आपका. So condition of parallel lines क्या थी? The condition was A1 upon A2 equals to B1 upon B2, but not equals to C1 upon C2. और parallel line जो है, parallel line में दोनों में एक भी common point नहीं रहता. These two lines do not have common point. दोनों line का common point नहीं है. So the equations will not have no solution. तो ऐसे केस में साइमल्टेनियस में इसका क्वेश्चन आएगा नो सॉल्यूशन. तो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन और कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन. ये कंडीशन कल जो लोग प्रेजेंट थे उनके लिए. अभी तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 ऑप्शन दिए थे लेकिन तीसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 ऑप्शन, दीज आर द 3 ऑप्शन. तीसरा ऑप्शन क्या था? A1. तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि द लाइन्स वेर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है, दूसरी लाइन भी वही है. अब बोलेंगे सर वही लाइन है. यस, इक्वेशंस अलग अलग होते हैं. उसमें कंडीशन क्या होता है? A1 upon A2 is same as B1 upon B2 is same as C1 upon C2. तीनों को रेशियो इक्वल होता है. जब दो लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो मतलब इनके बहुत सारे कॉमन पॉइंट होते हैं. दोनों लाइन वैसी जगह से जा रहे हैं, उसी जगह से दो जा रहे थे. ईच पॉइंट इज कॉमन विद देम. सो ऐसे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स. So infinitely many solutions. The question is depending on this. It has infinitely many solutions. As it has infinitely many solutions, our condition of infinitely many solution and coincident line is A1 upon A2 equals to B1 upon B2 is C1 upon C2. Use this condition here. What is A1? 2. What is A2? 2A. A1 is 2. A2 is 2A. So 2 upon 2A. 2 upon 2A will be 3 upon A plus B, coefficient of X and Y. The ratios will be 7 upon 28. That you got, you will get 2 upon 2A. 1 upon A will be 1 upon 4.
7 4s are 28. So value of A will be 4. Value of A 4. From the value of A, find the value of B. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें A की वैल्यू 4 है, तो ऑटोमेटिकली द आंसर विल बी 4 8. नॉट नेसेसरी टू फाइंड द अदर वैल्यू, लेकिन हम अदर वैल्यू भी फाइंड करेंगे. 3/4 प्लस B, 3/4 प्लस B, A की वैल्यू 4 है, इक्वल्स टू 7/28, 1/4. सो B का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो रेशियो 1/4 होगा. 3 4s are 12, 4 plus B is 12, B is 8. The value of B is 8. So your answer is 4 8. Straight line as well as simultaneous linear equation. See the question. What type of question was it? Infinitely many solution. Standard question. Again another question. Yes. वीडियो देख लो, पूरा एक्सप्लेन किया है, डिटेल में नहीं बताऊंगा पर थोड़ा सा बताता हूँ. Infinitely many solution is same as coincident line. Condition of coincident line means A1/A2 is B1/B2 is C1/C2. So what are the coefficients of x? 2. Coefficient of x to a1 a2 2/2a, b1 b2 3/a plus 3/b plus b, c1 c2 7/28. एज इट इज दोनों राइट साइड में, तो दोनों राइट साइड में लीजिए, कोई बात नहीं. लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में लीजिए. अब इससे आपको ये फाइंड करना है, ये इक्वेशन से, एंड एट आल्सो बी. बस इतना ही काम है, कैलकुलेशन का पार्ट आपका है. हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर. सिमिलर क्वेश्चन. द क्वेश्चन हैज 4 option again. Let me write the option first. I am writing the option first. What are the options? Options are 1, 2, 3 and none of these. Options are 1, 2, 3 and none. These are the options. 1, 2, 3 and none. काय के लिए option है? The value of C for which the system has infinitely many solutions. Value of C for which the system has, system मतलब two or more than two equation, has infinitely many solutions. सिस्टम कौन सा है, इक्वेशन कौन सा है, देख लो इक्वेशंस. द इक्वेशंस आर 6x plus 3y. हाँ, 6x plus 3y will be 6x plus 3y will be c minus 3. पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन है 12x plus cy will be small c. हाँ, these are the two equations. Infinitely many solution. बहुत जल्दी आंसर मिलेगा. For what value of c the equation will have infinitely many solutions. Similar case. a का वैल्यू 6. नहीं, कदम प्रणव, वेरी गुड. नहीं, आंसर क्या है, डी. हाँ, यस. देखिए 6/12 इक्वल्स टू, रुको रुको, हाँ बहुत सारे लोगों का आ रहा है, 3/c विल बी इनफाइनाइटली है, मेनी सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन में 6 वैल्यू आएगा. नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में 6 वैल्यू आएगा. नो सॉल्यूशन में, इसमें अगर नो वर्ड आया तो मेनी वैल्यू 6 वैल्यू आएगा. बट इनफाइनाइटली मेनी में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं. ये नहीं. नेक्स्ट इज c minus 3/c. अब इसमें कौन सा वैल्यू है जिसके लिए तीनों रेशियो इक्वल हो गए, देख लो. ये दोनों रेशियो इक्वल करो, सी की वैल्यू क्या आती है. ये पहले रेशियो से सी की वैल्यू 6 आती है.
दूसरे रेशियो इक्वल करो, इसकी वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? ये दोनों रेशियो इक्वल करने के बाद सी की वैल्यू क्या आती है? देखो क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? 1 2 3 या नन ऑफ दिस? 1 1 नहीं आएगा आंसर। 1 2 3 या नन ऑफ दिस? 6 मतलब डी। 6 के लिए 6 माइनस 3 3, और इधर 6, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। नन ऑफ दिस इज योर आंसर। वैल्यू ऑफ सी इज 6। 2 नहीं, डी, none. Yes, D is your answer. That's the end of this question. So both were the question depending on that infinitely many solutions. बीच में थोड़ा गैप लेके फिर से दूसरे वन सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अभी बीच में एक क्वेश्चन अलग है। Here this is your equation ax plus by plus c equals to 0. This is does not represent equation of line, does not represent equation of line. X plus by plus c equals to 0 will not represent equation of line. Option A. See the options. The options are very important. You have the options. A and C 0, but B is not 0. Option A. Option B. Both B and C 0, but A is not 0. Option C. इक्वेशन ने लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, नहीं. Option C. See the all options. A and B both are 0. Option D. Yes. C is your answer. Karthik. Option D. A and B equal but not 0. देखिए, ये इक्वेशन, दिस विल नॉट रिप्रेजेंट. यस, ए एंड बी बोथ आर 0. ए और बी 0 हो गए तो वेरिएबल नहीं रहेंगे. वेरिएबल नहीं रहेंगे तो इक्वेशन को कोई मतलब नहीं. सी इक्वल्स टू 0 मतलब 0 इक्वल्स टू 0. सी का वैल्यू 0. इट विल नॉट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट वन वेरिएबल चाहिए, मतलब कम से कम एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो चाहिए, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा लाइन का. तो अगर ए 0 है, बी 0 है, तो वेरिएबल ही नहीं रहते, वेरिएबल की टर्म नहीं रहती है. बी 0 है तो भी चलेगा बट ए नॉन 0 होना चाहिए. ए 0 है तो भी चलेगा बट बी नॉन 0 होना चाहिए. बाकी किसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रहती. The condition is on only on A and B. The option is C. A and B both are 0, तो line will, this equation will not represent a line. ये दोनों 0 अगर हो गए तो ये इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा. अभी वैसा ही क्वेश्चन अभी हमने लिया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के दो क्वेश्चन. अब पैरेलल क्वेश्चन, पैरेलल लाइन के क्वेश्चन, simultaneous linear equation and parallel lines, straight lines, combination of questions. For what value of k the lines are parallel? The lines are parallel. What are these lines? The lines are kx minus 3y plus 6, and another line is 4x minus 6y plus 15. Parallel line. Then what is value of k? Parallel line. Value of k will be what?
yes, yes, 2, yes, yes, very good. Other students try parallel line मतलब नो सॉल्यूशन. हाँ, यस यस, बराबर है, आपके आंसर मिल रहे, देख रहा हूं मैं. यस, नाम नहीं लूंगा. यस, वेरी गुड, बहुत दिनों के बाद. ओके, वेरी गुड. यस यस यस. हाँ, A1/A2 B1/B2, वेरी गुड. वाह रे वाह. यस. व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? बहुत सिंपल है. यस, कोएफिशिएंट ऑफ x इज रेशियो इज सेम एज कोएफिशिएंट ऑफ y रेशियो. K/4 विल बी. इतने सारे हैं तो सभी के आंसर आने चाहिए धनाधन. -3/-6. So K will be 2. Yes. Value of K will be 2. Very good. Parallel मतलब A1/A2 equals to B1/B2. Parallel लिखा है ना मैंने. हाँ, parallel line बोला, parallel. Yes yes. अब वो क्वेश्चन को मैं बदलता हूँ थोड़ी देर के लिए. For what value of K? Perpendicular lines. पहला पैरेलल के लिए था, अभी परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर के लिए नहीं, परपेंडिकुलर के लिए नहीं भाई. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के? परपेंडिकुलर लाइन. पहले का स्लोप इनटू दूसरे का स्लोप -1. या A1/A2 इंटू B1/B2 -1, इस तरह से भी होता. -6. यस, -6. -6. -6. देखिए, पहले का स्लोप दो तरह से करेंगे. K/, -3 इंटू दूसरे का स्लोप ऑफ सेकंड लाइन. What is the slope of second line? K/-3, 4/-6. 4/6 is -1. ये स्लोप है दोनों लाइन की. तो कितना आएगा फिर? कितना आता फिर? तो -6 नहीं आएगा ना. M1 M2 -1. यस, इस तरह से जाइए. M1 M2 -9/2. 6 नहीं, -9/2. यूज दिस कंसेप्ट. चलो नेक्स्ट. अब ये थे पैरेलल, पहला केस. पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन. इसमें आपको पैरेलल की जगह होगा नो सॉल्यूशन. यस, -9/2. तो इसलिए पहला पैरेलल था, पैरेलल की जगह और एक वर्ड आएगा नो सॉल्यूशन, तो वही आंसर. नो सॉल्यूशन मतलब वही. भी हुआ नो सॉल्यूशन था. पैरेलल परपेंडिकुलर नो सॉल्यूशन. K/4. अब हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं. देखो, अब मैंने एडजस्ट किया है. For what value of K? For what value of K the lines will have infinitely many solutions? रुको, अभी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, वीडियो देख लो. 2. आंसर देते जाइए, पहले आंसर. यस, 2 के लिए इसको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो गए. वैल्यू ऑफ के 2. A1/A2 B1/B2 C1/C2.
ओके, -2 नहीं, +2, हाँ यस, बराबर है। 1/2 ऑल रेशोज। ओके, यस, -3 upon -6 is k upon 4 is 6 upon 12, सब रेशो इक्वल है। सो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करो, ट्राई करना है। AM इक्वल्स टू BL, पेन निकालना पड़ेगा आपको। AM इक्वल्स टू BL, देन AX प्लस BY इक्वल्स टू C, एंड देखिए इक्वेशन AX प्लस BY C एंड LX प्लस MY इज N। ऑप्शन ए, तीनों ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, आई डोंट नो। जब ये कंडीशन होगा देन तो ये दोनों इक्वेशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या ओनली वन सॉल्यूशन? ऑप्शन ए ओनली वन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इनफाइनेटली मेनी, ऑप्शन डी नन। वी डोंट नो, वी कैन नॉट गारंटी, वी डू नॉट हैव सर्टेनिटी अबाउट। अच्छा, ये भी ऑप्शन आया, बी भी आया है, इन ओनली वन। देखो चेक करेंगे, AM इज BL, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? C अपॉन N है, C अपॉन N है, लास्ट ये C अपॉन N है। C एंड N डिफरेंट है, तो इसमें एक खेल खत्म होता है, रेशो 1 नहीं आएगा। A अपॉन L, इससे क्या बनेगा? A अपॉन L इक्वल्स टू B अपॉन M। देखो इससे बन गया ना गिवन से, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बराबर है। देखो गिवन से क्या बना है? गिवन से A अपॉन L भी B अपॉन M, गिवन से क्या कंडीशन बन गई? A अपॉन L विल बी B अपॉन M। अभी इसमें A अपॉन L और B अपॉन M इक्वल, मतलब क्या? A अपॉन L A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल कब होते हैं? पैरेलल लाइंस में। यस, वेरी गुड। अब जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होते हैं, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। पैरेलल में इनफाइनेटली नहीं, नो सॉल्यूशन रहता है। अभी ये C अपॉन N के बराबर है, इसकी कुछ गारंटी नहीं है ना, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो आगे का तीसरा रेशो नहीं मालूम हमको, ये C है N है, अलग अलग है, उनका इनसे कुछ भी रिलेशन नहीं है, वो अलग नंबर है। C भी अलग है, N भी, ALBM में रिलेशन है, और वो रिलेशन है इक्वालिटी का। क्वेश्चन है भाऊ, देख लो क्वेश्चन, ध्यान नहीं देते हो। AX प्लस BYC एंड LX प्लस MYN, ये दो इक्वेशन है और कंडीशन है, ये दिया है, दिस इज गिवन। AM इज BL, AM BL की ओर कॉन्सेंट्रेट करो। AM इज BL, तो ये L इधर लाएंगे तो ये अपॉन L होगा, और M उधर जाएगा तो B अपॉन M, ये दोनों इक्वल आए रेशो। सी दिस रेशोज, इससे रेशो मिल गए। अब इसमें वो रेशो क्या होता है? ये अपॉन L इक्वल्स टू B अपॉन M, और ये दोनों तो इक्वल आ गए, मतलब पैरेलल लाइन, और लाइन पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशो सेम आया, बट द रेशो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यस यस यस, वेरी गुड, समझ में आया तो अच्छी बात है। आगे जाएंगे, 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, 5। These were on the equations of lines. A अपॉन B, उसका यूज नहीं ना, A अपॉन B, L अपॉन M, उसका यूज होगा स्लोप में। स्लोप इक्वल है ना, पैरेलल लाइन है, वैसे भी कर सकते हो। A अपॉन B विल बी L अपॉन M, A अपॉन B विल बी L अपॉन M। कोएफिशिएंट ऑफ x का y और y का डिवीजन
कोएफिशिएंट ऑफ x और y का डिवीजन दोनों लाइन का सेम है तो दोनों लाइन के स्लोप सेम। अभी बाकी जो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर का क्वेश्चन। फ्रैक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, तो आपको याद रखना है फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। आप अगर टू वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, आप कौन सा भी किसी को भी आप एक्स कंसिडर कीजिए, इसे एक्स और इसे वाई, तो हमारा फ्रैक्शन होगा एक्स अपॉन वाई, और इससे भी सारी पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट होगा, सभी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगा। एक को न्यूमरेटर कंसिडर करो, एक को डिनोमिनेटर। अगर दोनों में डायरेक्ट कुछ रिलेशन दिया है तो आप वन वेरिएबल यूज कर सकते हो। समझो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डबल है तो न्यूमरेटर एक्स हुआ तो डिनोमिनेटर 2x हुआ। इस तरह से भी आप जा सकते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेट मी हैव वन प्रॉब्लम ऑन दिस फ्रैक्शन, प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर्स, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम स्क्वायर, रेक्टेंगल, so many problems using what? Two variables. Denominator of rational number is greater than its numerator by 3. अब इसमें आप वन भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, टू भी। डिनोमिनेटर dr मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, देखो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, इट्स जो न्यूमरेटर है बाय 3। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 3 से ग्रेटर है। इक्वेशन फॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कंडीशन है 3 subtracted from numerator and 2 is added to denominator, new prime becomes 1/5। 3 the fraction becomes 1 up सिंपल। तो डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन क्या है? 7/11, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और बी नहीं, तो रह गए सी एंड डी ऑप्शन। बी कैसे? डिनोमिनेटर 5, 3 से 3 ग्रेटर नहीं है, 2 ग्रेटर है, तो ऑप्शन सी 5 और 8, 5/8, ऑप्शन डी 4/7। हाँ यस, दोनों में से 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अब दोनों में क्वेश्चन ऐसा आया है, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, बस इतना ही आएगा, तो क्या करोगे? न्यूमरेटर क्या है? तो आपके पास न्यूमरेटर दिए समझो। अभी ये प्रॉब्लम में नहीं दे सकता न्यूमरेटर, हम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर आया है तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर ले लेंगे, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 3।
में से 3 गए 6 और 12 में से 2 ऐड किया 14, सो ये नहीं आता आपका फ्रैक्शन 1/5। ऐसा भी आप वेरीफाई कर सकते हो, या डिनोमिनेटर दिया जाएगा। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? And 2 is added in the denominator. देख लो शॉर्ट में लिखा है, the fraction become 1/5, so what will be your fraction? तो कैसे निकालोगे आप ये फ्रैक्शन? What will be the fraction? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे लास्ट के, 5/8 और 4/7। वेदांत, Yes, sir. आर यू लिसनिंग? Okay. Yes, sir. हाँ, तो ये 5/8 है, 4/7 है, इसमें डिनोमिनेटर 8 है, न्यूमरेटर 5 है, तो 8 5 से 3 ग्रेटर है कि नहीं? Oh, है. है कि नहीं? Yes, sir. 8 is greater than 5/3 और 7 is also greater than 3 by 4। ये भी 3 से ग्रेटर है, ये भी दोनों में से एक ऑप्शन है, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, कैसे चेक करना है? सेकंड कंडीशन में जाइए, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर में 3 सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा। 2 इज एडेड इन द डिनोमिनेटर, 8 में से 2 ऐड किया तो 10 आएगा 8, और 7 में 2 ऐड किया तो 9, ये 1/9। दोनों में से कौन सी वैल्यू 1/5 की ओर जा रही है? ये 2/10 वाली, वो किसके वजह से आई है? 5/8 वजह से, इसलिए हमारा आंसर 5/8 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हाँ, है ना? समझा। अभी मैंने क्वेश्चन क्या बदला कि न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर पूछा है, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं है अपने पास, न्यूमरेटर दिए हैं 5 है, 4 है, 7 है और 9 है, कुछ भी नहीं है, तो हमने 9 लिया न्यूमरेटर।